आइए हम आज के कार्यक्रम के लिए तैयार हों। चूंकि हम अभ्यास कर चुके हैं, सुनना, देखना, चलना फिरना ये पश्चिम का कार्यक्रम है। आंख बंद करके अपने में एकाग्र होना, भ्रूमध्य दर्शन, श्वास दर्शन, ऑल्टर ऑफ गॉड, सिर और रीढ़ में एकाग्रता, कान बंद करके जो प्रणव मंत्र सुनते हैं वह, दीक्षा वाली क्रिया, ये सब पूरब की यात्रा है। पूरब की यात्रा में आंख बंद करने की आवश्यकता है। पश्चिम की यात्रा हो बिना पूरब के होगी नहीं। तो समय सिर से पैर के उंगली तक अनुभव करते ही फिर हम देखेंगे, सुनेंगे, गंध स्वाद की अनुभूति, चलना फिरना, सोचना, तर्क वितर्क करना, ये सब तभी ठीक होता है। अब हम सुनने के लिए तैयार हैं। इसे थोड़ा सा पश्चिम पूरब और मिल जाए, इसे 2 बार श्वास प्रश्वास के साथ हम बैठे बैठे अंगड़ाई लें और फिर खड़े होकर के यही अभ्यास करें। Now again we are ready to follow our path of self-realization. When we are using our eyes, opening eyes, observing outward, listening outward, using nose to smell something from outside, tasting outside any food, anything, is called Western journey, Western life. And we are walking with the leg, working with the arm. This is called the Western movement, W-E-S-T, West. But to close your eyes, watch your breath, place concentration of mind on movement, on head and spine, on head to toe, changes within. And practicing initiation steps is called eastward journey. But we need east and west together. Therefore, we should have proper listening. Therefore, I request all of you, in sitting position, practice twice, double breathing followed by stretching relaxation. Same repeat in standing position. It is for all, not for one. जो हम कर रहे हैं सबके लिए है, केवल एक के लिए नहीं। एम है सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि सेल्फ में ब्रह्मांड की सारी रचनाएं इसी में हैं, अपने अस्तित्व में ही विद्यमान है। अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन का अभ्यास प्रतिदिन करते हैं तब बाहर की चीजों को समझने में गलती नहीं होगी। और एम इज सेल्फ रियलाइजेशन। इफ वी practice self-realization, there should be reason why. Because within self, the whole universe exists. What we call the structure of the West, heavenly bodies, sun, stars, planets, many other things, moon, sky, air, everything exists within. Therefore, when we practice self-realization, how to realize truth behind our own self, then we will have correct observation of any object present outside. Otherwise, we will do mistake. Now listen sincerely. हम लोग ये बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ भी होती है, हम समझते हैं कि बीमारी है, समस्या है, जैसे भय लगती, डर लगता है। अगर डर है तो समस्या होगी, अज्ञानता है तो समस्या होगी। हम कौन है, कहाँ से आए हैं पृथ्वी पर, कब तक रहेंगे, फिर सब लोग चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, हम जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे, फिर कहाँ आएंगे, ये पता न होने से डर लगती है। सिर से पैर की उंगली तक इसमें कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसा परिवर्तन होने से डर लगती है। तो जो डर है, भय है, बहुत बड़ी चीज है। और भय तो ऐसा है, एक दिन बड़े से बड़े काम में लगे रहिए, काम को छोड़ देते हैं हम। भय बड़ी ही शक्तिशाली है। Try to understand, if you have fear of any kind, then that is the dangerous.
Fear will be there if there is ignorance. Ignorance about self, from where we came on this planet, how long we are going to stay here. When one by one people are departing, where they go. After going, they return back or not. This is a lot of information. We do not know it. When we do not know this, we will have fear without any doubt. And the fear is the greatest challenge in the life. Sometimes fear is too intense. Fear is so dense, condensed, intense, that we lose everything. We lose patience, tolerance. We lose a state of even-mindedness. We feel we have no power in body and mind. Everything is lost. The fear is the greatest problem in the life. How to get rid of fear. That is the important thing. And how to understand external universe. That is also important. Therefore, feel head to toes. This presence of head to toes, changes within head to toes, whatever we feel. Try to accept all is the most important. Never say it is not important. Never have fear. If you are standing, you are not able to feel, appreciate changes appearing within head to toe, then sit down. If sitting we are not able to accept changes, very difficult, lie down. We are not able to still accept the changes, what we feel within head to toe, then learn how to place concentration of mind on Bhumad, on breath, on altar of God, on holy vibration when ears are closed. Then feel tense relaxation of every part. During this, whatever changes you feel, try to accept them more and more. And one day you will realize we are able to appreciate all changes we feel within head to toes all the time. That is what we need to practice. That is important thing. अच्छी तरह से याद रखिए कि सेल्फ रियलाइजेशन बहुत आवश्यक है, लेकिन नहीं कर पाते हैं क्योंकि सिर से पैर की उंगली तक इसमें जो परिवर्तन होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है दुख है, तकलीफ है, सह नहीं पाते हैं। कभी कभी खड़े हैं, ऐसा परिवर्तन हुआ, चक्कर आया, सह नहीं पाए, डर लगी, बैठ गए। ठीक है, बैठे रहिए। बैठी हुई स्थिति में ऐसा परिवर्तन हुआ, सह नहीं पाए, लेट जाइए। लेटी हुई स्थिति में परिवर्तन हो रहा, सह नहीं पा रहे, तब क्या करेंगे? तब आता है क्रिया योग के विषय में जानना। भ्रूमध्य दर्शन क्या है, भ्रूमध्य पर ध्यान कैसे करते हैं, श्वास पर ध्यान कैसे करते हैं, सिर और रीढ़ जो ब्रह्म गुफा है इस पर ध्यान कैसे करते हैं, सिर से पैर की उंगली तक पूरे अस्तित्व में ध्यान करिए। धीरे धीरे ध्यान करने के लिए और गहराई में आने के लिए कड़ा ढीला करते हैं, टेंशन रिलैक्सेशन। जब अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे लगता है कि हाँ, जिन परिवर्तनों को हम सह नहीं पाते हैं, अब वही परिवर्तन ज्ञान की तरह लगते हैं। यही ज्ञान है, शक्ति है, शांति है, आनंद है, अमृत है। इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, तब बाहर का दृश्य पता चलेगा कि सूरज पूरब से पश्चिम क्यों जाता है, चंद्रमा भी पूरब में उगती है और पश्चिम में जाती है, सब क्या है ये। तब जब उसको सोचेंगे तब पता चलेगा, किताब में पढ़ लेने से रटने से नहीं आता है। कि सब चीज बाहर की चीज जब समझ में आने लगेगी, ठीक ठीक, इसका अर्थ ये है कि अपने में एकाग्रता बढ़ने लगी। देखिए जैसे हम आगे चलते हैं, आगे जब चल रहे हैं तो देखिए जैसे आप हैं, आप नजदीक आ रहे हैं। जो दूर बैठे हैं जब चलते हैं तो भी नजदीक आ रहे हैं, लेकिन उनका नजदीक आने की क्रिया डिफरेंट है। जैसे आप कार से ड्राइव करते हैं, कार से ड्राइव करते हैं तो निकट के पेड़ है, वृक्ष है, लगता है जल्दी नजदीक आ रहे हैं, और दूर के वृक्ष लगता है कि हम इधर जा रहे हैं तो इधर जा रहे हैं। और दूर के वृक्ष को देखिए तो और धीरे धीरे चल रहे हैं, और के दूर के वृक्ष को देखिए तो और धीरे धीरे चल रहे हैं।
ऐसे हम यहाँ पर हैं, चंद्रमा कहीं है और सब चीज कहीं है, तारामंडल कहाँ है, ये सब चलते रहते हैं। होता क्या है, सब पूरब से पश्चिम चलते हैं, पूरब से पश्चिम चलते हैं। दिखाई तो पड़ता है कि सूरज पूरब में उगते हैं और पश्चिम जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिर से पैर की उंगली तक ये पूरब है, हम पूरब में हैं हम, और जब चलना था हम भी पश्चिम में चलते हैं। ये चलना पश्चिम है। जैसे सूरज पूरब से पश्चिम जाते हैं, हम क्या है, हम भी सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करते ही हम सारा कार्य करेंगे। हम चलना फिरना उठना बैठना, तो चूंकि सिर से पैर की उंगली तक अनुभूति करना ये पूरब की अनुभूति है। इसके साथ हम चलते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, ये पश्चिम के क्रियाकलाप है। हम पूरब होकर के जब पश्चिम में चलते हैं, अंदर में देवत्व प्रकट होता है। ये शिक्षा देते हैं कि देखो हम पूरब से पश्चिम जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये बाईं तरफ है, हम बाएं से दाएं जा रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, बात समझ में आती है, ठीक है। ऐसे जब हम आगे की तरफ चलते हैं, अब देखिए उधर से अपनी तरफ आने को, ये भी क्लॉकवाइज हुआ। हम आगे चलते हैं तो आप हमारे निकट आ रहे हैं, तो निकट आने की क्रिया को क्लॉकवाइज कहते हैं। दूर जाने की क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। जब आप हमारी तरफ आ रहे हैं तो क्लॉकवाइज आ रहे हैं, इसका उल्टा क्या हो रहा है? हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ऐसे जब सूरज बाएं से दाहिनी तरफ, ये क्लॉकवाइज, इसका अर्थ है कि पृथ्वी फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। पृथ्वी ये जो घूमती है, जो स्पिन करती है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चंद्रमा की परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज, सूरज की परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज, तीसरे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, दो प्रकार की गतियां एक साथ होती हैं, दोनों अलग अलग नहीं होती हैं। तो क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं? तो जब दोनों प्रकार की गतियों को हमेशा हम करते हैं तो समस्या नहीं आती है। सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करना, हम पूरब दिशा में हैं, हम सामने की तरफ आ रहे हैं पश्चिम दिशा में, तो क्या हुआ? क्लॉकवाइज। और जब हम यहाँ से वहां आ रहे हैं तो आप हमारे नजदीक आ रहे हैं, ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपकी तरफ आते रहे और आप नजदीक ना आए, दूरी न घटे, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज नहीं हुआ। इस तरह चीजों को समझना पड़ता है, और समझ नहीं आएगा जब तक सिर से पैर की उंगली तक हम अनुभव न करें। जब पहले ये समझिए, तब हम आपको युग के बारे में बताएंगे। हम पहले समझिए सिर से पैर की उंगली तक की अनुभूति, ये पूरब की अनुभूति है। पूरब किसको कहते हैं? ईस्ट। चलो पूरब की अनुभूति, फिर हम आपकी तरफ आ रहे हैं। पूरब की अनुभूति का लक्ष्य क्या है? हम पश्चिम को पकड़े, अपने को अनुभव करेंगे हम, तब आप तक आएंगे हम, फिर हम देखेंगे, हम सुनेंगे, हम गंध और स्वाद की अनुभूति होगी, पैरों से चलेंगे, हाथ से काम करेंगे। ये कब होगा? जब सिर से पैर की उंगली तक हम अनुभव करेंगे। आप महाभारत में देखिए, पांडव लोग पूरब में खड़े थे, उनकी दिशा किधर थी? पश्चिम। पांडव क्या है? सन ऑफ गॉड। हम ईश्वर की संतान की तरह हम जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो जो 5 पांडव जैसे रहते थे, महाभारत में कैसे खड़े थे? वो पूरब की तरफ थे, उनका मुंह पश्चिम की ओर था। तैसे हम लोग सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाते हुए समस्त कर्मों का संपादन करें। हम पांडवों की तरह हो गए। इसका अर्थ है कि हम मनुष्य अब देवता बनने के लिए तैयार हैं। ये जो सुन रहे हैं ना, अभ्यास करेंगे तो सुन रहे तो समझ में आएगा। आप दोनों हथेली सिर के पीछे रखिए, सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाइए, सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करिए। जो अनुभूति कर रहे हैं, ज्ञान है, शक्ति है, शांति है, आनंद है, अमरता का अनुभूति है। इसी अनुभूति में सब कुछ विद्यमान है। अभ्यास करते हुए फिर से इसको सुनिए,
Feel, place both palm on the posterior surface of it. Feel head to toe changes within. Whatever you feel within head to toes, try to feel it, accept it. Whatever you feel is presence of power, knowledge, peace, bliss, immortality. When you are experiencing this, practicing this, then try to understand this also. By increasing awareness to feel head to toe changes within, staying in this position, practicing this idea, thought and concept, when we start using our eyes to see anything, then vision will be clear. In vision there will not be attachment, aversion. Using ears to listen, then when you are listening you will have perfect love of God with the sound waves. When you smell and taste, using leg to walk, using arm to work, doing all activities what you perform, and you are feeling head to toes more and more changes within, accepting this, it is presence of power, knowledge, peace, bliss, immortality. Now this practice is transformation of human consciousness into children of God. First you have to be master in this. In order to understand about yugas, present yuga is ascending Dwapar Yuga. You will understand so that you can explain others. Why you have to understand about yugas? Because you have to understand what is the time, this is the time, morning and evening, day or night, month and year. In the same way about yuga also. Because our aim is to get transformed into profit. Therefore we have to understand it. Now raise arms up, हाथ ऊपर उठाएं. फिर से हम move arms up and down. हाथ को ऊपर नीचे करें. सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करते रहें. जो अनुभूति है, शक्ति है, ज्ञान है, शांति है, आनंद है, अमरता का अनुभूति है. और इस तरह से अभ्यास करना ही हम पूरब में स्थित हो गए. पूरब में स्थित होकर पश्चिम से जुड़ना है. हम आंखों से देखेंगे, कान से सुनेंगे, नाक से गंध, जीवा से स्वाद, पैरों से चलना, हाथ से काम, मन और बुद्धि के क्रियाकलाप जब संपादित करते हैं तब पूरे पश्चिम एक होता है. ऐसी स्थिति में हम मनुष्य का रूपांतरण होता है ईश्वर के संतान के रूप में. इसके मास्टर हो जाइए तब हम आपको युग के बारे में बताएंगे. नॉट अ प्रैक्टिस. डबल ब्रीदिंग फॉलोड बाय स्ट्रेचिंग, रिलैक्सेशन. हम दोबारा श्वास प्रश्वास के साथ हम अंगड़ाई लें. रिपीट वंस मोर. एक बार और दोहराएं. Now let us bow down to our devotion we have in Kriya Yoga meditation. Now we will sit and open eyes. This is the style of Gyanatar Samik Tesagri, how to communicate Kriya Yoga. Listen and practice. Listen and practice. Moment you experience what you practice, then listen further. ज्ञाता समित तेसगी गुरुदेव की यही पढ़ाने की पूरी स्टाइल थी. थोड़ा पढ़ाते थे, अभ्यास कराते थे. अभ्यास करते करते जो पढ़े हैं उसके साथ एक हो गया. फिर अगला सुनिए, नहीं तो मानसिक बीमारी होती है जिसको अज्ञानता कहते हैं, बहुत भयंकर होती है. If you are listening and not practicing, not experiencing the same, you will get high quality of ignorance that will disturb the whole life. This is for now. आज के लिए. Let us bow down to our devotion in Kriya Yoga meditation, which is the complete education to solve all problems of the life. Now we will sit. Now we will sit and open eyes. This is for today. Morning we'll meet again. हम सुबह हम लोग फिर मिलेंगे.